ہم ہمیشہ سے اچھے دوست رہے ہیں، کیا یہ دوستی کسی اور رشتے میں قائم ہو سکتی ہے؟ ارسا چونکی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک الوہی چمک ارسا کے چہرے پر آ کر گزر گئی۔ کچھ دیر تک دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہی۔ اتنی دیر میں ارسا خود کو سنبھال چکی تھی۔ شکوے سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، یہ خیال تمہیں پہلے کیوں نہیں آیا؟ کیا ہم پہلے اچھے دوست نہیں تھے؟ فرحان ابھی کچھ سوچ کر جواب دیتا کہ ارسا خود ہی بولی، گویا اب تم مجھ پر ترس کھا کر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، ہے نا؟ اگر ایسا ہے تو میں تمہارا احسان نہیں لوں گی۔ وہ اوپرے دل سے کہہ رہی تھی، من تو اس کا کھل اٹھا تھا۔ اب تم نے کہہ لیا تو میری بھی سن لو۔ خواہش تو میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں کی بھی تھی، لیکن تمہارے گھر والے، خصوصاً تمہارے بڑے بھائی کا ٹارگٹ کچھ اور تھا۔ اس کی سوچ کے آگے ہماری حیثیت ہی کیا تھی؟ وہ تو تمہیں امیر مالدار گھرانے میں بیانے کا خواہاں تھا۔ اس کی بات پر ارسا کلس گئی اور برملا فرحان کے سامنے بولی، اس میں دلاور بھائی کے مفادات تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں کسی ایسے گھر میں بیاہی جاؤں کہ میری معاشی حیثیت سب بہن بھائیوں کے لیے مورل سپورٹ بنے، لیکن چند دن میں ہی انہیں پتہ چل گیا کہ سالار اور اس کے گھر والے روپیہ تو کیا کسی کو بخار دینے پر بھی آمادہ ہونے والوں میں سے نہیں تھے۔ تبھی تو وہ جلد ہی اپنے فیصلے پر پچھتانے لگے تھے۔ یہ تو سراسر انہوں نے اپنے لیے ہی سوچا، تمہارے لیے تو کچھ نہیں سوچا۔ فرحان نے اس کے ساتھ ہمدردی کی۔ ارسا چپ رہی، پھر کہنے لگی، اب میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں گی۔ فرحان نے یکدم ڈرنے کی ایکٹنگ کی، تو گویا تم مجھے ریجیکٹ کرنے والی ہو؟ ارسا اس کی حرکت پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ تو ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی ایسی سوچ ہے۔ اگر یہ رشتہ ہم پہلے جوڑ لیتے تو ہمارے گھر والوں کے تعلق میں اور بھی مضبوطی آ جاتی۔ دلاور علی نے فرحان کے والد صاحب کو کہا، جو فرحان کا باقاعدہ رشتہ مانگ رہے تھے۔ اس رشتے پر ارسا کے سارے گھر والے مسرور اور متفق تھے۔ خود ارسا بھی دل ہی دل میں خود پر نازا تھی۔ بس اگر آپ لوگوں کو یہ رشتہ منظور ہے تو منگنی آج ہی کیے لیتے ہیں اور شادی کی تاریخ بھی جلد ہی طے کر لیتے ہیں۔ ضرورت بھی کیا ہے اتنا وقت نکالنے کی؟ گھر میں بیٹھے بٹھائے کتنا اچھا رشتہ آ گیا تھا۔ واقعی فرحان سے بہتر اور کون ارسا کا جیون ساتھی ہو سکتا تھا؟ ارسا کے بہن بھائیوں میں ہی منگنی کی رسم ادا ہو گئی۔ دونوں طرف سے انگوٹھیوں کا تبادلہ ہو گیا۔ بھائی منگنی تو سادگی سے ہو گئی ہے، مگر شادی دھوم دھام سے ہوگی، پورے باجے گاجے اور شور شرابے کے ساتھ۔ سبھی خوش ہو کر بولے تو کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، بلکہ دلاور کہنے لگا، ہماری یہی ایک خواہش ہے کہ ارسا کی شادی دھوم دھام سے ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ارسا بدقسمت نہیں ہے۔ دلاور کی بات پر الیاس صاحب اور بھی خوش ہوئے اور آنن فانن شادی کا دن بھی متعین کر لیا گیا۔ اور جب فرحان کی منگنی اور شادی کی خبر الیاس صاحب نے فیصلہ باد جا کر مہران کو سنائی تو مہران کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو؟ یہ ہو رہا ہے، الیاس صاحب نے ڈھٹائی سے بولے، اور تم اپنا منہ بند رکھو گے اور امبر سے بھی کہو گے کہ اپنا منہ بند رکھے، مگر آپ لوگ جانتے بوجھتے کسی کی زندگی کیسے خراب کر سکتے ہیں؟ فرحان کچھ عرصے سے HIV پازیٹیو ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ HIV پازیٹیو ہے تو کیا اسے موت سے پہلے مار دیں؟ اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، زندگی کی خوشیوں پر کوئی حق نہیں ہے اس کا۔ مہران چپ سا ہو گیا۔ ذرا خود سوچو مہران، اس نے ساری زندگی عیاشیوں میں صرف کی ہے، اب تنہائی اور اکیلا پن اسے کاٹتا نہیں ہوگا؟ وقت سے پہلے مر جائے گا وہ، اگر ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا تو۔ خوش ہے وہ اس رشتے پر، شادی کرنا چاہتا ہے وہ ارسا سے، زندگی پر اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہم سب کا ہے۔ باپ کے دلائل پر مہران نے گہری سانس کھینچی۔ الیاس صاحب کتنی صفاقی بے رحمی کا ثبوت دے رہے تھے۔ اگر وہ عیاش نہ ہوتا تو اسے یہ مرض بھی نہیں لگتا۔ اب ان باتوں سے کچھ فائدہ نہیں ہے، ٹھیک اور اس کا پراپر علاج ہو رہا ہے، مگر وہ علاج سے ٹھیک تو نہیں ہو جائے گا۔ مہران نے بات کاٹی، مگر وہ کنٹرول میں تو رہے گا نا؟ اب جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے اس کے حال پر چھوڑنا وقت سے پہلے موت کے منہ میں دھکیلنا ہے، اور میں اسے لمحہ بلمحہ مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ جتنی بھی اس کی زندگی ہے میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب تم اس بات کو منہ پر نہیں لاؤ گے اور بھائی کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو گے، سمجھے؟ مہران نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ارسا کان سے فون لگائے مزے سے بستر میں لیٹی تھی اور فرحان اس کے کانوں میں اپنی محبت کی شیرینی انڈیل رہا تھا۔ جب سے تمہارے پاس سے آیا ہوں ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔
نہ جانے کیسے گزرے گا یہ ہفتہ، وہ بے چینی سے کہہ رہا تھا اور ارسا کے من میں گدگدی ہو رہی تھی۔ کتنا خوبصورت پیریڈ ہوتا ہے منگنی کا، یہ مجھے تم سے منسوب ہو کر پتا چلا ہے کہ اس رشتے میں بھی کتنا چارم ہے۔ وہ اس کی شیرینی باتوں میں الجھ رہی تھی۔ اچھا، فرحان ہنسا، مگر خدا کے واسطے اس چارم کو زیادہ پسند نہیں کر لینا، کہیں میری شادی ہی التوا میں پڑ جائے۔ ارسا کھلکھلا کر ہنس دی۔ بڑی جلدی ہو رہی ہے جناب کو؟ ہاں بہت جلدی، میرا بس چلتا تو میں تمہیں ساتھ ہی لے آتا، مگر ابو کی خواہش تھی کہ شادی باقاعدہ طریقے سے ہوگی، اس لیے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اور تمہاری کوئی خواہش نہیں تھی؟ ارسا نے چھیڑا۔ میری بھی یہی خواہش ہے کہ ساری رسمیں ہوں، لیکن یار ان میں وقت بہت ضائع ہوتا ہے، وہ بے چینی سے بولا تو ارسا کو اپنا آپ نایاب اور معتبر لگا۔ کتنا چاہتا تھا فرحان اسے، اتنی چاہت تو اس نے کبھی سالار میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ ہر وقت گھر والوں سے ڈرا سہما رہتا تھا سالار، جبکہ فرحان کو شروع سے کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی اور اسے ایسے ہی مرد اچھے لگتے تھے، نڈر اور اپنی منمانی کرنے والے۔ اچھا سنو، تمہارے شادی کے جوڑے کی شاپنگ کرنی ہے، بولو کس رنگ کا لوں، اور ہاں ولیمے کا بھی بتا دینا۔ فرحان اس سے پوچھ رہا تھا، تم اپنی پسند سے لے لو نا، آخر تمہاری پسند بری تو نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہے، فرحان نے کہا، شادی کا دن ہر ایک کے لیے بہت اہم ہوتا ہے اور اس کی اہمیت تبھی برقرار رہتی ہے جب دولہا دلہن کو اپنی من پسند شاپنگ کا موقع ملے۔ کچھ تو سوچا ہوگا تم نے، کپڑوں کے بارے میں، جیولری کے بارے میں، آخر یہ تمہاری زندگی کا اہم ترین دن ہے۔ فرحان کی باتیں کس قدر اس کے مزاج کی عکاسی کر رہی تھیں، وہ گھائل ہی ہو گئی اور کہے بنا نہ رہ سکی، کاش فرحان تم مجھے پہلے ہی اس بندھن میں باندھ لیتے تو میں اپنی زندگی کے بدترین دن یوں ضائع ہونے کا غم نہ کرتی۔ فرحان ہنس دیا، اب تم ایسی باتیں کرو گی تو میں ابھی اڑ کر آ جاؤں گا۔ ہاں تو آ جاؤ نا، اکٹھے ہی شاپنگ کر لیتے ہیں، آخر تم بھی تو اپنے لیے شادی اور ولیمے کا جوڑا لوگے۔ ہاں ابھی تک تو میں نے بھی کچھ خریداری نہیں کی، چلو ٹھیک ہے، میں کل تک تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ جہیز کا سارا سامان ویسا کا ویسا ہی ہے، میرا تو خیال تھا کہ وہ لوگ احتیال میں سامان کو توڑ پھوڑ دیں گے یا کم کر دیں گے، مگر انہیں تو جیسے غصہ ہی نہیں آیا۔ جیولری بھی تمہاری جوں کی تو ہے، بس میک اپ وغیرہ کی اور کپڑوں کی کچھ خریداری کرنی ہے، وہ تمہیں فرحان کرا دے گا۔ کیوں؟ فرحان کیوں کرا دے گا؟ مجھے جو خریدنا ہوگا میں اپنے لیے خود خریدوں گی، فرحان کو جو اپنی طرف سے لینا ہوگا وہ لے لے گا۔ دیکھو ارسا، دلاور نے انکار کر دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے 1 روپے کی بھی نئی خریداری نہیں کرے گا، ہر چیز تو ہے تمہارے پاس، تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ لے لے گا فرحان تمہارے لیے، تم نے ہی تو استعمال کرنا ہے، اور پھر ویسے بھی اتنے بڑے پیمانے پر دوبارہ بارات کے کھانے اور اسے ٹھہرانے کی ذمہ داری چھوٹی نہیں ہے، دلاور کا اچھا خاصا خرچہ ہو جائے گا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی آپ؟ ابھی تو دلاور بھائی کے پاس میرے وہ 5 لاکھ روپے بھی ہیں جو میں نے حق مہر میں وصول کیے تھے، وہ روپے تمہاری پہلی شادی کے قرض میں اتر گئے۔ نعیمہ بیگم نے کہا تو ارسا حیرانی سے ماں کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ تو اس کا مطلب ہے اب بھی دلاور بھائی کسی سے قرض لے کر میری شادی پر کھانے کا انتظام کریں گے؟ وہ جل کر بولی، ہاں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ تم میانہ روی سے چلو اور دیکھو اب دوبارہ ان 5 لاکھ روپے کا ذکر مت کرنا۔ دلاور نے سن لیا تو بہت ناراض ہوگا، پہلے ہی بھائیوں میں کاروباری کھینچا تانی چل رہی ہے، سعد اور معیز نے علیحدگی کا مطالبہ کر لیا ہے، دلاور پہلے ہی بہت پریشان ہے۔ بس میں تو یہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے دلاور جیسا بیٹا دیا ہے جو میرے برے بھلے وقت میں کام آ رہا ہے۔ 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا خرچ ہے اب بھی، تمہاری شادی کے کھانے اور ہوٹل میں قیام کا۔ ارسا چپ ہو گئی، کیا بحث کرتی جب ماں ہی ہتھیار ڈال چکی تھی۔ تمہاری شادی کے بعد گھر کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، خدا سے دعا کروں گی میری بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں آباد اور خوش رہیں اور کبھی پلٹ کر نہ آئیں۔ یہ کہہ کر نعیمہ بیگم اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ ارسا نے مزید بحث اور جرہ کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ فرحان فیصل آباد سے آیا تو ارسا کو شاپنگ کے لیے لے کر نکل پڑا۔ فرحان نے 2 دن تک ارسا کو جی بھر کر شاپنگ کرائی، لیکن ارسا نے شادی کا جوڑا نہیں خریدا اور نہ ہی فرحان کو خود اس کا جوڑا خریدنے دیا۔ خیر ہے محترمہ، پورا شہر گھوم لیا اور تمہیں کہیں اپنے لیے شادی کا جوڑا ہی پسند نہیں آیا؟ بے فکر رہو، کسی خاص جگہ سے ہی شادی کا جوڑا خریدوں گی تاکہ جہاں سے خریدوں بیچنے والے کو بھی یاد رہے کہ نئی زندگی کا آغاز کس طرح کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ فرحان نہیں سمجھا۔ ایسا کرو کینٹ سائٹ پر چلتے ہیں۔ پھر ارسا فرحان کو سالار کے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں لے گئی۔ اس کی بیسمنٹ پر
ब्राइडल की आराइश से मजी थी। उसकी बेसमेंट ब्राइडल की आराइश से मजी थी। उसने वहां से ब्राइडल ड्रेस 1 मिनट में चॉइस करके खरीद लिया। फिर वो फरहान से कहने लगी, तुम्हें पता है ये सालार और उसके भाइयों का डिपार्टमेंटल स्टोर है। मैं यहाँ तुम्हें इसलिए लेकर आई थी कि जिस वक्त हम अपनी शादी की ड्रेस खरीदें, सालार हमारे सामने हो, लेकिन वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा। वो मायूसी से बोली तो फरहान हंस दिया। ये भी कोई बड़ी बात है? देखो, यहाँ पूरे डिपार्टमेंट स्टोर में कैमरे नस्ब हैं। किसी एक फ्लोर में तो कोई उसे मॉनिटरिंग कर रहा होगा, फरहान ने कहा, और फिर यकदम बरहा होकर साथ गुजरते शख्स से ऊंचा ऊंचा बोलने लगा। सेल्समैन और गार्ड दौड़ कर आए तो फरहान ने उन्हें भी बुरा भला कहा और मुलाजिम को थप्पड़ मार दिया। ये क्या कर रहे हो फरहान? इरसा बेचैन हो गई और फरहान को बाजू से पकड़कर खींचने लगी। तभी थर्ड फ्लोर पर सालार को इत्तला मिली कि बेसमेंट में कस्टमर्स के दरमियान झगड़ा हो गया है। उसने कंप्यूटर पर देखा तो कोई शख्स तेज तेज बोल रहा है सालार को। वो जाना पहचाना लगा और फिर जैसे सालार की निगाहें स्क्रीन पर से हटना भूल गईं। बरहना बाजू में लंबी कमीज और खुले पांचों की शलवार पहने बगैर दुपट्टे के बाल खोले हुए इरसा उसके साथ चिमट कर खड़ी थी। मेहराब लिफ्ट के नजदीक पहुंचा नीचे जाने के लिए तो सालार ने आवाज दे दी, प्लीज भाईजान, आप में से कोई नीचे नहीं जाएगा। मेहराब ने सालार की तरफ देखा, फिर उसकी स्क्रीन पर निगाह पड़ी तो वो दंग रह गया। हम लोग अपनी शादी की ड्रेस लेने आए थे, लेकिन हमें क्या मालूम था यहाँ के मुलाजिम किस कदर इल्म-मैनर्ड और चीप है। ये इरसा थी। नहीं लेनी फरहान हमने यहाँ से कोई चीज। चलें आप यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ऑनर को बुलाएं आप लोग। सर, कुछ बताएं तो सही, हुआ क्या है? गार्ड मौदबाना अंदाज में पूछ रहा था। कुछ नहीं कहना हम लोगों ने। चले फरहान, यहाँ से चलते हैं। और दूसरे ही पल वो लोग बाहर निकल गए। सड़क पर तेज मोटरसाइकिल चलाते हुए फरहान और इरसा जोर जोर से कह के लगा रहे थे। मुझे पता था कि वो सामने नहीं आएगा, लेकिन उसके पास मैसेज तो पहुंच गया ना। उसे चाहिए कि वो ये रिकॉर्डिंग यादगार बना कर रख ले। वो बाहम हंसते हुए बहुत दूर गुम हो गए। अलबाब और मेहराब ने गुस्से और नफरत से ये सब कुछ देखा। फिर अलबाब सालार की तरफ देखकर कहने लगा, कहाँ मर गई तुम्हारी गैरत? अव्वल दिन से जलील करते आ रहे हो तुम हमें। आज तक हम लोगों को ये पता नहीं चल सका कि सच्चाई क्या है। आखिर वो तुमसे तलाक लेने पर क्यों मसर थी? क्यों नहीं बताया तुमने हमें? और बिलाखिर वो खुद ही मंजरे आम पर आ गई तो ये वजह थी तुम पर तलाक की तहमत की। सालार की गर्दन झुक गई थी, निगाहें फर्श से उठ नहीं रही थीं। दोनों बड़े भाइयों की आंखों में गम और गुस्सा था, जबकि सालार के लब बाहम इस तरह पैवस्त हो गए थे जैसे कभी ना खुलेंगे, और आंखें सुर्ख हो रही थीं। दूसरे ही पल वो वहां से बाहर निकल गया। बहुत ही बुज़दिल निकला तुम्हारा साबका शौहर। कम से कम उसे सामने तो आना चाहिए था। फरहान घर के सामने मोटरसाइकिल रोक कर बोला तो इरसा तकीर और तनफ्फुर से बोली, वो इतना ही बुज़दिल है और इस बुज़दिली को गैरत समझता है। खैर, मेरा तो मकसद पूरा हो गया। तुम्हें साथ देखकर ही वो मुझसे बदजन हुआ था। अब उसे ये ख्याल ही तकलीफ पहुंचाता रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ ही घर बसाने जा रही हूँ। ये कहकर इरसा फरहान की तरफ देखकर मुस्कुराई और दोनों साथ साथ घर में दाखिल हो गए। ये इत्तेफाक था या तकदीर के किरतास पर यूं ही लिखा था। जिस रोज फरहान का निकाह इरसा से हुआ, उसी रोज नाइमा सालार की जिंदगी में दाखिल हुई। सालार की शादी सादगी और वकार से इख्तिताम पजीर हुई थी, जबकि इरसा और फरहान की शादी में हर किस्म की रस्म और धूमधाम शामिल थी। इरसा अपनी जिंदगी पर जिस कदर भी नाज करती थोड़ा था, फरहान ने उसकी पसंद के मुताबिक सब कुछ किया था। उसे एहसास हुआ था कि शादी का बंधन कहते किसे हैं। वो फरहान के बेडरूम में दुल्हन के रूप में आरास्ता और पैरास्ता बैठी थी और फरहान उसे अपनी मोहब्बत का यकीन और अपनी वाबस्तगी का एहसास दिला रहा था, जिस पर वो नाजा और फरहां थी। नाइमा वाजिबी सी शक्लो सूरत की लड़की थी। वो सालार के पहलू में खड़ी होकर भी नहीं जच रही थी।
لیکن وہ اس کی شریک حیات بن گئی تھی، اس لیے اس کے لیے معتبر تھی۔ سالار نے اس سے محبت کے دعوے نہیں کیے، اس کی سج دھج کو نہیں دیکھا، وہ تو اپنی گھٹن کو آج لفظوں میں نکال دینا چاہتا تھا، اس ساری گھٹن کو جو کئی دن سے اسے حب زدہ کیے ہوئے تھی۔ میں ارسا سے بہت محبت کرتا تھا، شاید وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ جب وہ میری زندگی میں آئی تو مجھے لگا وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور وہ مجھے دھوکہ دے کر، بہتان لگا کر مجھ سے علیحدہ ہو گئی۔ وہ ایک علیحدہ ہی ماحول کی پروردہ تھی، میں چاہ کر بھی اسے اس ماحول میں نہ ڈھال سکا۔ بعض اوقات میں اس کی بے پرواہی پر چشم پوشی اختیار کر لیا کرتا، جس پر گھر والے مجھ سے نالاں ہو جاتے۔ بعض اوقات وہ مجھے اس قدر غصہ دلاتی کہ گھر والوں کے سمجھانے پر بھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، اور میرا دل کرتا کہ میں اسے جان سے مار دوں، لیکن اسے احساس ہی نہیں ہوتا تھا میری باتوں کا، حالانکہ وہ گھر والوں کی رضامندی اور پسند سے اس گھر میں آئی تھی، لیکن رفتہ رفتہ میرے لیے تانا بن گئی، کیونکہ اس کی حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں اس کی محبت میں پاگل ہو گیا تھا، تبھی اس کے عیبوں پر پردے ڈالنے لگا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو کچھ میں ارسا کے گھر میں دیکھتا ہوں اس کا تذکرہ اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں میں بیٹھ کر کروں۔ مجھے اس سے محبت ہی نہیں تھی، اس کی عزت بھی عزیز تھی، مگر نہ جانے وہ کیسی لڑکی تھی۔ وہ میرے سمجھانے پر میرا مذاق اڑاتی تھی۔ شادی کی پہلی رات جب میں نے اس سے کہا ارسا آہستہ ہنسو، تو وہ برا مان گئی۔ مجھے تبھی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ کبھی میرا کہا نہیں مانے گی، میرے کہنے کے مطابق اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لائے گی۔ اگر میں ایسا سمجھ بھی لیتا تو کیا ہماری زندگی اچھی گزرتی؟ وہ اسی طرح اپنی منمانی کرتی تھی، البتہ کچھ عرصے کے بعد اس میں یہ بات آ گئی تھی کہ وہ میرا کہا مان لیا کرتی، لیکن اپنے گھر جا کر وہی حرکتیں کرتی جن سے مجھے شکایت تھی۔ میں نے کبھی یہ بات گھر میں ظاہر نہیں کی۔ ایک طرح سے وہ بھی میری شخصیت میں تبدیلیوں کی خواہاں تھی۔ وہ کہتی تھی اگر میں اسے شریعت پر پابند کرنا چاہتا ہوں تو پہلے خود شرعی احکام کو اپناؤں۔ اکثر وہ میرا مذاق اڑاتی اور کہتی کہ مجھے داڑھی رکھ لینی چاہیے۔ میں اس کی باتوں سے کنفیوز ہو جاتا، لیکن میں آج سوچتا ہوں میں کنفیوز کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ میں خود ادھورا مسلمان تھا۔ ہاں، میں نماز کا پابند نہیں تھا، یہ بھی سچ ہے۔ میرے چہرے پر شرعی داڑھی نہیں تھی، تو کیا ان دو باتوں کے نہ ہونے سے ایک مسلمان مرد ادھورا مسلمان ہوتا ہے؟ میں نہیں جانتا اس بات کو۔ ہاں، مگر میں اتنا جانتا ہوں میں نے آج تک کسی غیر عورت کو دلچسپی سے نہیں دیکھا، بری نگاہ نہیں ڈالی کسی پر، کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہنسنا بولنا گوارا نہیں کیا، ہمیشہ رشتوں کا احترام کیا۔ یہ ہماری تربیت اور خون کا حصہ تھا کہ ہم عورت کو بہت معتبر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب میں نے ارسا کو ایک بالکل اجنبی شخص کے ساتھ ناچتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا۔ میری غیرت تو یہی کہتی تھی کہ میں اسے سب کے سامنے طلاق دے دوں، لیکن میرا آنے والا بچہ میری بزدلی بن گیا، اور اس وقت میں مصلحتاً خاموش ہو گیا، اور یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ تمہیں پتا ہے اس بات کا ذکر میں نے گھر آ کر کسی سے نہیں کیا۔ گھر والے مجھ سے پوچھتے رہے، اور یہاں تک کہ بات بڑھتے بڑھتے سب کے درمیان میں پہنچ گئی، مگر میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے ارسا کا کون سا فعل دیکھا تھا۔ سب کچھ ختم ہو گیا، اور گھر والے مجھے لان تان کرتے رہے۔ جب ارسا نے قرآن پاک اٹھا کر کہا کہ میں اسے طلاق دے چکا ہوں، تب میں شددد ہی رہ گیا۔ ہر کوشش اور بھاگ دوڑ کے باوجود میں کوئی ثبوت نہ نکلوا سکا، اور جب میں ہر کوشش میں ناکام ہو گیا تب میں نے ہار مان لی۔ ارسا سے نہیں، اس رب سے۔ نہ جانے میرا اللہ مجھے کون سی بھلائی دینے والا تھا، اور پھر میں نے اپنے اس فیصلے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔
लेकिन कैसी बात है ये, उसने अपने राज खुद ही फाश कर दिए। चंद रोज कबल वो मेरे स्टोर पर आई, उसी शख्स के साथ मैं जो जरा सी बात पर गुस्से में आ जाता था, मुझे उसे देखकर गुस्सा ही नहीं आया। आखिर वो मेरी लगती ही क्या थी जो मैं गुस्सा या गैरत दिखाता। अलबाब भाई मुझसे बहुत नाला हुए। उनका शुरू से ख्याल था कि अंदर जाने बात कुछ ना कुछ जरूर है। उनका कयास बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन मैंने इरसा पर कोई कीचड़ नहीं उछाली। जब मैंने अपना मामला अल्लाह को सौंप दिया तो अल्लाह ही मेरा बेहतरीन बदला लेने वाला। ये कहकर सालार ने गहरी सांस ली, फिर गुमसुम बैठी नायमा की तरफ देखकर कहने लगा, सब लोगों की तरह तुम्हारे दिल में भी खदशात होंगे, सवालात होंगे, तुम शायद यकीन ना करो, मगर मेरा दिल ये कहता है कि उसने मेरा बच्चा भी खुद मारा होगा, सिर्फ आजादी की खातिर। ये कहते हुए सालार के चेहरे पर किस कदर कर्ब था। नायमा हैरत ज़दा रह गई। उस वक्त वो बिल्कुल टूटा हुआ था। उसे पुरएतमाद और मुखलिस साथी की जरूरत थी, जो उसे नायमा की सूरत में मिल गई थी। इरसा और फरहान हनीमून से लौट आए हैं। अब मुझे बता दो कि मैंने अपने बच्चे लेकर कहाँ रहना है। अंबर ने मेहरान से सवाल किया तो मेहरान सोच में पड़ गया, फिर कहने लगा, कुछ दिन और सब्र कर लो, फिर अब्बू इरसा और फरहान को अलहदा कर देंगे। वो तो अब भी अलहदा हैं, कौन सा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन इरसा तो हमारे घर में दंदनाती फिरती है। सुबह होते ही वो किचन में घुस जाती है। अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। आप मेरा किचन अलहदा करवाएं या फिर उसके पोर्शन में किचन बनवा दें। क्यों आती है वो इधर? अंबर ने झुरझुरी लेकर कहा तो मेहरान कहने लगा, देखो वहम मत करो, जिस तरह तुम समझ रही हो ये बीमारी इस तरह नहीं फैलती। तो किस तरह फैलती है? वो हमारे साथ खाए पिए, बच्चों को ले, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं साफ साफ बता रही हूँ, या तो उसका इधर आना जाना खत्म कराएं, वरना मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। अंबर ने धमकी दी। तुम ऐसा नहीं करोगी? मेहरान गुस्से में आ गया। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। क्या करोगे तुम? अंबर डटकर खड़ी हो गई। तुम्हारे जैसा बेवकूफ शख्स मैंने जिंदगी में नहीं देखा, जिसे अपने बच्चों की जिंदगी का एहसास नहीं। मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर, जब तुम उसका बंदोबस्त कर लो तब आकर मुझे ले जाना। अंबर ने गुर्रा कर कहा और अपने बच्चे लेकर अंदर कमरे में चली गई और अपना सामान पैक करने लगी। मेहरान उसके पीछे पीछे कमरे में आ गया। देखो अंबर, इस तरह तमाशा मत दिखाओ। तुम्हें पता है मेरे लिए भी ये सब कुछ बिल्कुल गैर इरादी और अचानक है। अब तुम कुछ मौका दोगी तो कुछ प्लानिंग कर सकूंगा। तुम प्लानिंग कर ही नहीं सकते। अगर तुम मेरा या अपने बच्चों का भला सोचते तो उसी दिन इस घर से निकल जाते जिस दिन तुम्हारे भाई को ये मर्ज हुआ था। तो मेरे भाई से तुम्हें क्या तकलीफ पहुंची? वो तो खुद ब खुद अलग थलग रहने लगा था सारी फैमिली से। मेहरान झड़क कर बोला। हाँ, तभी उसने जानते बूझते हुए भी फैमिली बना ली। अंबर चिढ़कर बोली। इसी असना में वो अपने बच्चों के कपड़े बैगों में भर चुकी थी। देखो अंबर, तुम इस तरह नहीं जा सकती। घर का सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। अब नहीं होगा। इस घर में दूसरी बहू आ चुकी है, आखिर उसे भी तो मौका मिलना चाहिए घरदारी करने का। अंबर ने सुकून से कहा। मेहरान उसके सामने खड़ा हो गया। देखो मेहरान, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं अभी तुम्हारा सारा पोल खोल दूंगी। मेहरान बर्क रफ्तारी से सामने से हट गया। अंबर तीनों बच्चों को लेकर घर से चली गई। अंबर भाभी के जाने से घर बिल्कुल ही सूना हो गया है। आखिर वो मैके में और कितने दिन रुकेंगी? इरसा ने फरहान से पूछा तो फरहान कहने लगा, वो लड़ झगड़ कर गई हैं, पता नहीं कितने दिन तक रुके, अलहदा घर का मुतालबा है उसका। जब मेहरान मान जाएगा वो आ जाएगी। क्यों? वो अलहदा क्यों होना चाहती हैं? इरसा को हैरानी हुई। फैमिली ही कितनी बड़ी है, हमेशा साथ रहा जा सकता है। अच्छी खासी तो गुंजाइश है इस घर में। उसे तुम पसंद नहीं हो, फरहान ने झूठ बोला। अजीब बात है। इरसा दिल ही दिल में हैरान हुई, फिर कहे बिना ना रह सकी। मैंने ऐसे लोग नहीं देखे जैसी अंबर भाभी हैं। बिल्कुल अलग थलग रहती हैं, अपने बच्चों को भी कमरे में बंद करके रखती हैं। मैं तो हैरान होती हूँ वो इस तरह कैसे रह लेती हैं।
तुम उसके अलावा कोई और जिक्र नहीं कर सकती। फरहान चिढ़ गया। क्या बहुत याद आ रही है उसकी? ऐसा नहीं है फरहान, मैं पहले भी तुमसे कहना चाहती थी। अंबर भाभी अपने बच्चों को प्यार करने नहीं देती, खुद भी खिंची खिंची रहती हैं और बच्चों को भी मुझसे दूर रखती हैं। हालांकि उनका छोटा बेटा मुझे बहुत प्यारा लगता है। अक्सर मेरा दिल करता है उसे गोद में लेकर बहुत सारा प्यार करूं, लेकिन जैसे ही मैं उसे गोद में उठाती थी, भाभी उसे लेकर अपने कमरे में चली जाती थी। अब तुम बता रहे हो कि वो मुझे पसंद नहीं करती। वैसे इस नापसंदीदगी की कोई वजह तो होगी। वो दिलचस्पी से फरहान के करीब हो गई तो फरहान गुस्से में आ गया। तुम ऐसा करो, उससे खुद पूछ लेना। वो यकदम इतनी तलखी से बोला कि इरसा हैरान रह गई। फरहान, क्या हो गया है आपको? फरहान, क्या हो गया है आपको? तुम सोचो कि तुम्हें क्या हो गया है। एक इंसान तुम्हें मुसलसल इग्नोर कर रहा है, तुमसे बात नहीं करना चाहता। वो अपने बच्चों को तुम्हारे कमरे में भी नहीं आने देती, इतनी नफरत करती है तुमसे, और तुम हो के मुसलसल उसे अहमियत देकर उसका जिक्र ही किए जा रही हो। जहर लगती है वो औरत मुझे। हर वक्त मेहरान को मेरे खिलाफ भड़काती रहती है, अब्बू के खिलाफ कान भरती रहती है। मेहरान ही तो हमें कमाकर नहीं खिला रहा, जो कुछ भी है सब कुछ अब्बू का है, मगर उसे तो जैसे गुमान है कि उसके शौहर के टुकड़ों पर पल रहे हैं हम लोग। तुम्हारे आने से खर्चा बढ़ गया है, इसी वजह से तुम उसकी नजरों में खटकती हो। अब्बू उसके बच्चों के बगैर एक पल नहीं रह सकते, इसलिए वो बच्चों को कमरे में बंद करके अब्बू को तकलीफ पहुंचाती है, ब्लैकमेल करती है हमें, और तुम समझ ही नहीं रही कि उसकी नेचर क्या है, क्या नफ्सियात है। इरसा को हैरानी हुई, भाड़ में जाए वो। इरसा चटक कर बोली, बड़ी इतराती है अपने बच्चों पर, अल्लाह ताला हमें भी बच्चे दे देगा, अब्बू की तन्हाई दूर हो जाएगी। फरहान उसकी बात पर नजरें चुरा गया और कुछ नहीं बोला। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं फरहान, मैं दिन रात दुआ करती हूँ मैं जल्दी से फिर से माँ बन जाऊं, मुकम्मल माँ। वो गहरी हसरत से बोली तो फरहान तब भी चुप रहा। तुम्हें भी तो बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, तुम कुछ नहीं कहते इस बारे में? वो फरहान को गुमसुम पाकर छेड़ने लगी। हो जाएंगे इरसा बच्चे भी, अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। वो चिड़चिड़े से अंदाज में बोला तो इरसा एक बार फिर हैरान रह गई। बहरहाल मैं नहीं चाहता कि मेरे बहुत जल्द बच्चे हों। बच्चे होने के बाद जिंदगी की सारी रंगीनी खत्म हो जाती है। फिर उसने यकदम अपना लहजा बदल लिया और इरसा को प्यार से देखते हुए बोला, अभी तुम ऐसे ही बहुत हसीन लगती हो, बच्चों के बाद यकदम बेडौल सी हो जाओगी, जिस तरह अक्सर औरतें हो जाती हैं, और फिर मुझे इतना वक्त नहीं भी दोगी जिस तरह अब देती हो। फिर तुम्हारी सारी तवज्जो और चाहत का मरकज बच्चे ही होंगे, इसलिए मैं दुआ करूंगा कि तुम कभी मां ना बनो। ये कहते हुए इसकी आंखों में कितनी सफाकी थी। इरसा ने बेसाख्ता अपने मुंह से निकलती तकलीफ दे चीख को हथेली रखकर रोका और शिकवे से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं फरहान? उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई थी। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। वो इसी कैफियत में था। फिलहाल अपने दिल में माँ बनने की ख्वाहिश को पनपने न देना, क्योंकि मुझे औलाद की ख्वाहिश नहीं है। वो बेरहमी से कहकर बाहर चला गया और कई पल, क्या कई घंटे, इरसा के दिमाग में फरहान की बात गूंजती रही। इंसान के चाहने से क्या होता है? अल्लाह जो चाहता है वही होता है। ऐसे कैसे फरहान औलाद होने से रोक सकता है? मेरे अंदर माँ बनने की कितनी ख्वाहिश है, ये तड़प कोई नहीं जान सकता। शायद ये तड़प इस मलाल में पन्हा है जिसे मैंने खो दिया। मैं फरहान को मनाऊंगी। फरहान मेरी हर बात मानता है और ये भी मान जाएगा। मैं माँ बनना चाहती हूँ, अपने वजूद के टुकड़े को गोद में खिलाना चाहती हूँ। उसने हसरत से अपने खाली हाथ देखे और दिल में अज़म किया कि किसी तरह से भी वो फरहान को इस चीज पर राजी करेगी। लेकिन अजीब बात थी, वक्त के साथ साथ उस पर इंकिशाफ होने लगा। फरहान ये मौजू ही पसंद नहीं करता। वो जितनी ज्यादा बच्चे की ख्वाहिश दिल में रखती थी, फरहान उतना ही बच्चों से चिढ़ता था। वो बहुत ज्यादा सोचने के बाद भी खोज नहीं पाई फरहान में ये तब्दीली अब आई है या वो शुरू से ही ऐसा था। यूं ही जिंदगी के शब रोज गुजर रहे थे कि इरसा को अपने अंदर कुछ तब्दीलियों का एहसास होने लगा। उसे हमा वक्त मतली किसी कैफियत रहने लगी थी। फिर ऐसा हुआ कि उसे कह आने लगी। इसके साथ ही मोशन भी लग जाते
उसे जिस रोज पहली मर्तबा कह आई वो खुशी से नाचने को थी। खुदा ने उसकी सुन ली थी। उसने दिल में मुअज़्ज़म इरादा किया था कि फरहान से जिस कदर होगा इस बात को छुपाएगी। एक बच्चा हो जाए, बेशक उसके बाद वो जितना ज्यादा कहेगा मैं वक्फा करूंगी, लेकिन अभी नहीं। वक्त गुजर रहा था, उसकी तबीयत निढाल सी होती जा रही थी। बसा औकात उसका गला भी खराब रहने लगा था। गले की खराबी की वजह से उसे टेम्परेचर हो गया और बढ़ते बढ़ते ज्यादा बढ़ गया। फरहान को उसकी तरफ से तफ्तीश होने लगी। फिर उसने दिल में सोचा, एक रोज इरसा के साथ ये सब तो होना ही था। उसकी खुदगर्जी अपनी जगह, मगर उसे इरसा का ख्याल भी तो रखना था। तुम्हारी तबीयत मुझे लगता है ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें बुखार है। वो इरसा को एक डॉक्टर के पास ले गया, जिसने इरसा का गला वगैरह चेक करके उसे बुखार और गले की दवा दे दी, जिससे इरसा को 2-3 रोज के बाद कुछ अफाका महसूस हुआ, लेकिन उसकी कैब बंद ना हुई। तुम्हें कैब कब से आ रही है? वो तशवीश से पूछ रहा था। इरसा ने बात गोलमोल घुमा दी। वो एक बार माँ बनी थी और उसे इसी तरह कह आती थी। कहीं ऐसा न हो कि फरहान को वक्त से पहले पता चल जाए और वो इस बच्चे को जाया कराने के बारे में मंसूबे बनाने लगे। इसलिए उसने फरहान को मुतमईन करना चाहा कि वो बिल्कुल ठीक है। मतली उसे अचानक हुई थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उसका गला फिर खराब हो गया और उसे फिर टेम्परेचर हो गया। फरहान ने इस बारे में इलियास साहब को बताया। फरहान की सारी मेडिसिन इलियास साहब के कमरे में ही रखी थी और वो रोज वहीं जाकर मेडिसिन लेता था। मुझे लगता है इरसा पर भी बीमारी हमला आवर हो गई है। मुझे समझ नहीं आता कि वो मुझे अपनी कैफियत सही तरह क्यों नहीं बताती। अब भी मैं उसे कह रहा था कि डॉक्टर के पास चले तो उसने चलने से इनकार कर दिया। उसे तेज बुखार हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि उसे अपनी मेडिसिन में से 2 डोज दे दूं, क्योंकि मुझे यकीन है वो बीमारी में मुब्तला हो चुकी है। पागल हो गए हो तुम? बगैर टेस्ट के तुम उसे कोई मेडिसिन नहीं दोगे? कैसी बातें करते हैं आप? मैं उसका टेस्ट कराऊंगा तो उस पर पोल खुल जाएगा कि वो मेरी वजह से। कैसे खुलेगा पोल? अव्वल तो तुम उस लेबोरेटरी से टेस्ट नहीं कराओगे जहां से तुम्हारे टेस्ट हुए थे, ना ही उस डॉक्टर के पास लेकर जाओगे उसे जिसके जेरे इलाज तुम हो। एक बात याद रखना फरहान, तुम उस पर कभी भी जाहिर मत करना कि वो तुम्हारी वजह से इस मर्ज में मुब्तला हुई है। हाँ, जब मर्ज जाहिर हो जाए तो तुम अपना भी मर्ज जाहिर कर देना, मगर रखना उसी पर कि उसे ही ये मर्ज था। इस तरह तुम्हारे मामलात ज्यादा नहीं बिगड़ेंगे। कुछ दिन परेशानी होगी, फिर सब कुछ मामूल पर आ जाएगा। इलियास साहब बेटे को आहिस्ता आहिस्ता समझा रहे थे, जो फरहान को अच्छी तरह से समझ में आ गया। कुछ देर वो खामोश रहा, फिर बोला, अच्छा वो मेहरान वाले मामले का क्या बना? अंबर बाजिद है अलहदा घर लेने पर। मेहरान से कहा है मैंने, घर देख ले, और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था। तुम अपने घर में आबाद रहना, वो अपने घर में आबाद रहेंगे, और आप? मैं दोनों तरफ रह लूंगा। वैसे फरहान, बच्चों के बगैर मुझे ये घर खाने को दौड़ रहा है। मुमकिन है मैं मेहरान की तरफ ही चला जाऊं। बहरहाल तुम फिक्र मत करना, मैं इधर भी आता रहूंगा। तुम्हें बिल्कुल अकेला तो नहीं छोड़ सकता। पहले इरसा के टेस्ट वेस्ट करा लो, उसका मामला क्लियर हो जाए, फिर कुछ प्लानिंग कर लेंगे। वैसे भी तुम अकेले थोड़ी हो, अब तो इरसा भी है तुम्हारे साथ। इलियास साहब बेटे को हौसला दे रहे थे। जैसे पल पल मरते इंसान को जिंदगी की अच्छी उम्मीद का धोखा दिया जाता है, वो तो खुद इस मर्ज में मुब्तला हो गई है। फरहान की आवाज धसी हुई थी। तो क्या हुआ? इलियास साहब ने बेटे के कांधे पर थपकी दी। बहुत से लोग हैं जो इस मर्ज में साला साल जीते हैं, रेगुलर मेडिसिन और चेकअप से। इरसा को बच्चों की बहुत ख्वाहिश है, वो हारने के से अंदाज में बोला। इलियास साहब ने कर्ब से गहरी सांस ली। क्या हो गया है तुम्हें फरहान? अगर तुम इस तरह टूट जाओगे तो किस तरह मामलात का सामना करोगे? बहुत से लोग बिल्कुल नॉर्मल भी होते हैं और ताहयात बे औलाद रहते हैं। तुम्हें किस चीज का कलक है? उसकी किसी ख्वाहिश को खुद पर हावी करने की जरूरत नहीं है, और बेफिक्र रहो। उस पर जैसे ही ये राज अफशा होगा, वो सारी ख्वाहिश भूल जाएगी।
इलियास साहब की खुदगर्जी उरूज पर थी, जो फरहान के लिए ढारस का सबब बन रही थी। वो इरसा को चेकअप के लिए फिर उसी डॉक्टर के पास ले गया और उसकी सारी कैफियत बताई। डॉक्टर ने दवा के साथ कुछ टेस्ट भी लिख दिए जो बेहद जरूरी थे। क्या जरूरत है इन टेस्टों की? वो घर आकर कहने लगी, मैंने नहीं कराने कोई टेस्ट वेस्ट। वो बेपरवाही से बोली तो फरहान चिढ़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अपना इलाज कराने से क्यों कतरा रही हो, क्यों इस कदर जिद में आ रही हो। ये तुम्हारा बार बार बुखार होना ठीक नहीं है। तुम्हारे सामने डॉक्टर ने कहा था ना। इरसा ने उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगी, तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल है ना तो मुझे किसी लेडी डॉक्टर के पास ले चलो, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे कौन सा मसला है। फरहान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर सर पकड़ लिया तो गोया उसे कोई खुशफहमी है। फिर उसकी ख्वाहिश पर उसे लेडी डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और इरसा के शक की तरदीद करते हुए बोली, नहीं मिसेस फरहान, फिलहाल तो आपको ऐसा कोई मसला नहीं है। बहरहाल आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और जरा कुछ ये टेस्ट करा लें। इन रिपोर्ट्स के बाद मैं आपका प्रॉपर इलाज कर सकूंगी। जहां इरसा सख्त मायूसी की हालत में घर आई थी, वहां फरहान को इत्मीनान था। उसके बाद फरहान ने उसके टेस्ट करा लिए। वो टेस्ट रिपोर्ट देखकर लेडी डॉक्टर तशवीश में मुब्तला हो गई और इरसा के 2 टेस्ट और लिख दिए। अगली बार जब वो लोग टेस्ट रिपोर्ट लेकर गए तो फरहान जहनी तौर पर तैयार था, जबकि इरसा उलझन में मुब्तला थी कि उसे अचानक क्या हो गया है जो वो हर वक्त बीमार रहने लगी थी। लेडी डॉक्टर ने हैरानी से दोनों की तरफ देखा, फिर उनसे चंद सवालात किए। कितना अरसा हुआ है आप लोगों की शादी को? तकरीबन 4 माह। फरहान ने जवाब दिया। लेडी डॉक्टर के चेहरे पर कर्ब भी था और सख्ती भी। मेरा ख्याल है मिस्टर फरहान, आप भी ये टेस्ट करा लें, इसके बाद ही मैं कुछ कह सकती हूँ। वो रखाई से बोली तो फरहान कहने लगा, क्या मतलब है डॉक्टर साहिबा आपका? जो बात है आप मुझे साफ साफ बताएं। फिर वो खुद ही कहने लगा, वैसे भी ये मेरी बीवी की दूसरी शादी है। 1.5 बरस की ये किसी और शख्स के साथ जिंदगी गुजार कर आई है। उसके ये कहने से लेडी डॉक्टर के चेहरे पर करख्तगी खुद ब खुद जायल हो गई। अच्छा, ये बात तो आप लोगों ने मुझे बताई ही नहीं। फिर लेडी डॉक्टर इरसा से मुखातिब होकर कहने लगी, देखे मोहतरमा, मैं जो बात आपको बताने जा रही हूँ ये यकीनन आपके लिए तकलीफ दे और परेशान कुन होगी, लेकिन आप घबराएं मत, हर बीमारी का इलाज है। क्या मतलब, आप क्या कहना चाहती हैं डॉक्टर साहिबा? लेडी डॉक्टर ने पहले फरहान की तरफ देखा, फिर इरसा की तरफ। आपको HIV पॉजिटिव है। क्या? इरसा के सर पर धमाका हुआ, कदमों तले से जमीन निकल गई, समातों पर यकीन ही ना आया। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। मगर ये कैसे? उसने बेचैन होकर फरहान की तरफ देखा जो सपाट चेहरा लिए बैठा था। फरहान साहब, आपको भी अपना चेकअप कराना होगा। आप अपनी बेगम का इलाज कराएं। बहुत से स्पेशलिस्ट हैं इस मर्ज के। प्रॉपर इलाज से ये मर्ज कंट्रोल में रह सकता है। बहरहाल ये तकलीफ दे तो है, मगर अल्लाह की रजा। हाँ, आप ये भूल जाएं कि आप कभी माँ बन सकेंगी। मेरा मशवरा तो यही है कि आप इस ख्याल को ही दिल से निकाल दें, क्योंकि एक ऐसी जिंदगी को वजूद में लाना जो पहले से ही अपाहिज हो अजियतनाक है और कुछ नहीं। बेहतर गाइड आपको आपका मौलिज कर देगा। आप इन डॉक्टरों में से किसी एक से मिल लें। लेडी डॉक्टर ने एक पर्चा फरहान की तरफ बढ़ाया। इरसा सख्ते किसी हालत में बैठी थी। वैसे फरहान साहब, आप तो गवर्नमेंट ने लॉ बना दिए हैं, निकाह नामे पर हेपेटाइटिस और HIV टेस्ट लाजमी हो गए हैं। क्या आप दोनों ने अपने टेस्ट नहीं कराए थे? फरहान खुद पर मुकम्मल कंट्रोल कर चुका था। इरसा की तरफ अजीब सी निगाह से देखकर बोला, हमारे यहाँ अभी तक इन बातों पर इतनी संजीदगी से काम शुरू नहीं हुआ। अगर वाकई गवर्नमेंट इतना सख्त कानून बना चुकी थी तो मेरी जिंदगी यूं तबाह ना होती। इरसा की आंखें मजीद हैरानी से फट गईं। शायद अदालतों में जो लोग शादियां करते हैं उनके लिए तहफ्फुज है इन कवानीन में। हमारे यहाँ तो काजी से लेकर गवाहान इन खानों को क्रॉस से पुर कर देते हैं। वो कितने एतमाद से कह रहा था। इरसा के पैर बेजान होने लगे। नहीं फरहान, मुझे ये मर्ज नहीं था। वो चीख कर कहना चाहती थी पर उसकी आवाज ही ना निकल सकी। घर में वो किसी लाश की तरह दाखिल हुई थी। सारे रास्ते वो अपनी याददाश्त को खंगालती आई थी। अगर सालार को ये मर्ज होता तो उसकी प्रेगनेंसी के वक्त डॉक्टर्स ने बहुत सारे टेस्ट कराए थे, कुछ भी नहीं था उसे। कहीं जब वो अपना बच्चा जाया कराने गई थी इस दौरान किसी इंजेक्शन से, मगर नहीं,
उसकी तो तबीयत कभी इस तरह खराब नहीं हुई जिस तरह अब हुई है। कहीं फरहान, हाँ फरहान भी तो, वो क्यों घर वालों से अलग थलग रहता था? उसकी भाभी का मेरे साथ रवैया ऐसा क्यों था? अंबर इस घर से कहीं इसीलिए तो अलहदा नहीं हुई। सारी कड़ियां मिलने लगी, उसके अंदर आग सी भर गई। फरहान अदुयात लेकर घर में दाखिल हुआ तो उसने फरहान को देखा। देखो, मेरा जब्त इतनी हौलनाक बीमारी का सुनकर भी तुमसे दूर नहीं भागा और तुम्हारे इलाज के लिए कोशा हूं, मगर मुझे ये बताओ, तुम्हारे शौहर को क्या कोई ऐसा वैसा मसला था, या तुम्हारा बच्चा जब जाया हुआ था तुम्हें खून वगैरह लगा था? वो कितना पुरसुकून था और मामूल से सवालात कर रहा था। इरसा फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। क्या कोई मर्द इतना साबिर और शाकिर हो सकता है? क्या फरहान ने मेरे साथ ऐसा जानबूझकर किया है? मुझे अब अपने भी टेस्ट कराना होंगे। खुदा न ख्वास्ता अगर मुझे भी ये मर्ज होगा तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए। भूल जाओ इस ख्वाहिश को। फरहान का सफाकाना लहजा उसे याद आया जो उसने कुछ दिन पहले कहा था। ये मर्ज तुम्हें ही था। वो भिपर कर बोली। क्या? फरहान चौंक गया। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? एक तो मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, आगे से तुम मुझे ही। हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ, तुम्हें ये मर्ज था और तुमसे ही मुझे ये मर्ज लगा है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। फरहान गुस्से से बोला। मैं आज ही अपने टेस्ट करा लेता हूँ। अगर मुझे ये बीमारी ना हुई तो तुम क्या करोगी? ये बात तो तय है कि हम दोनों इस मर्ज में मुब्तला हैं, मगर ये फैसला कौन करेगा कि पहले कौन मुब्तला था और किसकी वजह से दूसरे को ये मर्ज लगा? वो खुखार से लहजे में बोली तो इलियास साहब की आवाज अकब से आई। मैं ये फैसला करूंगा कि मेरे बेटे को ये मर्ज नहीं था। तुम ही इस बीमारी में मुब्तला आई थी और तुमने ही मेरे बेटे को ये मर्ज लगा दिया है। वो बेरहमी से कह रहे थे। इरसा के होंठ मारे खौफ और बेबसी के बाहम पैवस्त हो गए। और फरहान, तुम क्या इसके मजनू हो जो इसकी इतनी बकवास सुन रहे हो? पहले तो तुमने इसकी तलाक के दाग को अपनाया, फिर इसकी बीमारी का जिम्मा भी अपने सर ले रहे हो। तुम्हें तो जान से मार देना चाहिए मुझे। मेरे नौजवान बेटे को इस अजाब में मुब्तला कर दिया तुमने और अब भी हम ही पर गुर्रा रही हो। इलियास साहब कहर बरसा रहे थे। इसके घर वालों को फोन करो और कहो लेकर जाएं इसे। इरसा गंग रह गई। इलियास साहब गुस्से में बेटे का हाथ पकड़कर ले गए और इरसा दीवारों से सर पीट पीट कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। कितने दिन वो यूं ही सर पीटती रही, रोती रही, अपनी बेगुनाही का ऐलान करती रही, पर फरहान और उसके बाप के ये अल्फाज उसे आरे की तरह काट रहे थे कि वही इस मर्ज में मुब्तला थी। फरहान कई रोज तक उसके कमरे में ना आया। वो उसे अच्छी तरह से एहसास दिलाना चाहता था कि असल में वही मुजरिम है, वही बीमार है। आखिर वो कैसे खुद को सच्चा साबित करती? कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। यकदम जिंदगी कितनी हौलनाक हो गई थी। फरहान और उसके बाप की हठधर्मी अपनी जगह पर, उसकी बेबसी अपनी जगह पर कायम थी। फिर उसे ख्याल आया कि अपने घर वालों को फोन करे और अपने ऊपर टूट जाने वाली कयामत के बारे में बताए, खास तौर पर उसकी माँ जो उसकी सबसे बड़ी गमसार थी। और फिर वो माँ के मोबाइल पर फोन करती रही, उनका फोन अटेंड ही ना हुआ। वो और भी बेचैन हो गई। उसका सीना गम से फट रहा था, लेकिन उसका कोई पुरसाने हाल न था। वो बहन भाइयों में से किसी को भी फोन कर सकती थी, मगर उसका दिल चाहा ही नहीं कि किसी बहन भाई से राब्ता करे और अपने ऊपर गुजर जाने वाली कयामत का बताए। वो दिन रात इसी अधेड़बन में थी कि अचानक साजदा का फोन आ गया। साजदा पहले ही से परेशान सी थी, फिर भी उसका हाल अहवाल लेने लगी। कैसी हो इरसा तुम? इरसा का दिल तो गम से फट रहा था। गुलगीर लहजे में बोली, मुझे तो आप सब लोग इस तरह भूल गए जैसे मैं कभी आप लोगों के दरमियान थी ही नहीं। उसने शिकवा किया तो साजदा मायूसी से बोली, बस क्या करें इरसा, यहाँ तुम्हारी शादी के बाद पै दर पे ऐसे हादसे हुए कि हमें किसी चीज का होश ही ना रहा। खैरियत तो है साजदा बाजी? मैं कुछ रोज से अम्मी को फोन कर रही हूँ, वो फोन ही अटेंड नहीं कर रही हैं। वो बेचैन हो गई। हाँ, वो राबिया के मियाँ का कुछ दिन कबल संगीन एक्सीडेंट हुआ था। दिन रात हम लोग इसी परेशानी में रहे और आज सुबह शाहिद का इंतकाल हो गया। क्या? खौफ और दहशत से उसका मुंह और आंखें फटी की फटी रह गईं। उधर साजदा भी रो रही थी। अभी साल भी नहीं हुआ था उसकी शादी को और वो बेवा हो गई। अचानक हंसती भसती गृहस्थी खत्म हो गई। साजदा रो रो कर बता रही थी, राबिया कैसी है? इरसा ने अपने गम को पसे पुश धकेलते हुए राबिया का पूछा। राबिया कैसी होगी?
बच्चा हुआ वो भी मर गया और शौहर भी अचानक लुकमा अजल बन गया। पत्थर की बन गई है वो। इरसा से और बर्दाश्त ना हुआ और उसकी सिसकियां चीखों में बदल गईं। तुम खुद को संभालो इरसा, अम्मी की हालत सही नहीं है। जब से उन्हें शाहिद की मौत का पता चला था वो बेहोश हो गई थीं। अब भी वो अस्पताल में हैं और होश में नहीं हैं। डॉक्टर्स उनके बारे में ज्यादा पुरुमीद नहीं हैं। तुम ऐसा करो, फरहान के साथ फौरन आ जाओ, ना जाने फिर जिंदगी मौका दे या ना दे। साजदा और भी कुछ कह रही थी पर उसे समझ नहीं आ रहा था। साजदा की आवाज बहुत दूर होती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाता जा रहा था। उसे होश आया तो फरहान और डॉक्टर बाहम आपस में बातें कर रहे थे। इनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो रहा है, इन्हें खिलाएं पिलाएं ठीक हो जाएंगी ये। बहरहाल डिप्रेशन और लो ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोश हो गई हैं। अब फिक्र की कोई बात नहीं, इंजेक्शन लगा दिए हैं मैंने, इन्हें कुछ खिला पिलाकर ये अदुयात दे दें। फरहान डॉक्टर को छोड़कर जब कमरे में आया तो मुतवातर उसके आंसू आंखों से बह रहे थे। मैंने तुम्हारी सारी गुफ्तगू सुन ली है इरसा, अब अगर तुम्हें सफर के काबिल खुद को करना है तो अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना होगा। इरसा ने तकलीफ से उसकी तरफ देखा। फरहान के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। झूठे दगाबाज, तुमने जानते बूझते मेरी जिंदगी तबाह कर दी, माले गनीमत समझकर इस्तेमाल किया मुझे और अब भी मुझसे हमदर्दी कर रहे हो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी। लफ्ज उसके हलक से बाहर ही ना आ सके। अलबत्ता उसकी आंखों में नफरत और कर्ब कोहराम मचा रहा था। मैं तुम्हारे लिए गरम दूध और स्लाइस लेकर आ रहा हूँ, उसके बाद तुम ये दवाई पी लेना। फरहान ने उसने नजर चुराई और बाहर निकल गया। दवा के बाद उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई थी। फरहान उसके सामने बैठा था। देखो इरसा, इस तरह करके तुम मेरी जिंदगी को मजीद दुश्वार बना रही हो। मैं अब भी तुम्हारा साथ निभाने को तैयार हूँ। क्यों है तुम्हें मुझसे इतनी हमदर्दी? उसकी आंखें सवाल कर रही थीं, जिसे फरहान ने दानिस्ता नजरअंदाज कर दिया। मेरे इस कॉम्प्रोमाइज को तुम अपनी बका समझना। किसी भी शख्स को यह पता चलेगा कि तुम इस मर्ज में मुब्तला हो तो वो तुमसे ताल्लुक ही तोड़ डालेगा और भी अंधेरों में धकेली जाओगी। तुम्हारी बका इसी में है कि तुम इस राज को अपने अंदर ही रखना। तो गोया तुम अपनी जिंदगी से समझौता कर चुके हो और मुझे भी समझौता करना सिखा रहे हो। उसने तड़क कर कहा तो फरहान बिगड़ गया और झंझला कर बोला, ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना रहो, मगर मैं अपनी जात पर कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो गोया तुम्हें यकीन है कि मैं ही इस मर्ज में मुब्तला तुम्हारे पास आई थी। हाँ, तुम ही इस मर्ज में मुब्तला थी और तुम्हारी वजह से ही मैं इस मर्ज में मुब्तला हो चुका हूँ। 4 माह हो गए हैं हमारे अज़दवाजी ताल्लुक को। अच्छी तरह से रस बज गया होगा ये मर्ज मेरे अंदर भी। वो ढिठाई से बोल रहा था। इरसा ने गहरी सांस ली और अपने गम को अंदर धकेला। बड़ा ज़र्फ है तुम्हारा कि ना सिर्फ तुमने मुझे बल्कि मेरी बीमारी को भी कबूल कर लिया। वो दिल ही दिल में कुड़ने लगी। अब तुम मुझे बता दो, अगर तुम्हें मुल्तान चलना है तो मैं टिकट का बंदोबस्त कर लेता हूँ। फरहान ने अपनी खदमात पेश की। किस कदर नफरत हो रही थी उसे उस शख्स से, फिर भी मजबूर थी उसके साथ रहने पर। किस कदर खुदगर्जी का सबूत दिया है तुमने फरहान। तुमने सिर्फ अपने मुफाद और ख्वाहिश की खातिर मेरी जिंदगी तबाह कर डाली। याद रखना, मैं मर जाऊंगी मगर अब लौटकर तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, नहीं बनूंगी तुम्हारी किसी ख्वाहिश की तस्कीन का सबब। वो दिल ही दिल में किरलाते हुए जाने के लिए तैयार करने लगी। मरना ही है ना तो तन्हा मर जाऊंगी, मगर तुम्हारी सिसकती तड़पती तन्हाई का सहारा नहीं बनूंगी। तुम्हारा साथ तो क्या, तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती मैं। वो इसी इरादे से उसके घर से निकली थी और जब लंबा सफर तय करके उसने अपने मैके की दहलीज पर कदम रखा तो उसकी आंखें पथरा गईं और पांव जमीन ने जकड़ लिए। उसकी माँ का जनाजा सहन के बीचों बीच रखा था। उसकी बहनें आहो बका कर रही थीं। वो तो खुद गमों से लबरेज थी। एक और गम का पहाड़ कयामत बनकर टूट पड़ा था। वो अपना गम किस मेहरबान सीने में उंडेलेगी, कौन उसे छतार देगा। माँ दुनिया से चल बसी थी। वो दौड़कर माँ के जनाजे के करीब आई। उसकी चीखें जमीन और आसमान हिला रही थीं। वो पागलों की तरह धाड़े मार मार कर रो रही थी। नईमा बेगम को बेटियों का गम ले डूबा। पहले एक बेटी को तलाक हो गई और अब दूसरी नौ ब्याता ही बेवा हो गई। चलो, बेचारी ने तलाक याफ्ता को तो ब्याह ही दिया था, अब इस बेचारी का कौन पुरसाने हाल होगा। ना बच्चा रहा ना शौहर। नईमा की यही दोनों लड़कियां अच्छे घरों में ब्याही गई थी,
बाकी बेचारी बड़ी तो गुर्बत की चक्की में पिस रही हैं। सुना है साजिदा के मियाँ ने दूसरी शादी कर ली। वो राबिया को सीने से लगाए बैठी थी और औरतों की बातें, कयास आराइयाँ उसकी समातों में सीसा उंडेल रही थीं। यही तो है वो तलाक याफ्ता, मगर सुना है अब भी अच्छे ही घर में ब्याही गई है। अल्लाह करे इस बच्ची का भी अच्छा नसीब खुल जाए। पता नहीं क्या बात थी, पहले जिस घर में ब्याही गई थी वो लोग भी बहुत शरीफ थे, ना जाने निभा क्यों ना हुआ। अब तो सुना है सही बस रही है, शादी के बाद पहली बार ही मैके आई है। हाय हाय बेचारी नईमा जान से भी दुखिया थी और बेटियों का गम भी देख गई। दिन भर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा, लगता था लोग दुख बांटने नहीं तमाशा देखने आ रहे हैं। राबिया की आंखें तो जैसे पथरा गई थीं, ना अपने गम पर बहाने के लिए उसके पास आंसू थे और ना ही बैन के दो लफ्ज। वो मुजस्सिम खामोश थी। इरसा के पास से होकर आई तो और भी निढाल हो गई, गम से लबरेज हो गई। फरहान कुल के बाद चला गया था। माँ के कुल के बाद वो सब बहन भाई एक कमरे में बैठे थे। सब नईमा बेगम का जिक्र कर रहे थे, लेकिन वो खामोश एक कोने में बैठी सिसक रही थी। दिलावर जो उसे 3 दिन से बुरी तरह रोता बिलखता देख रहा था, उठकर उसके सर पर हाथ रखा तो वो तड़प कर भाई के सीने से लग गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। सबको उसे संभालना निहायत मुश्किल हो गया। ये वक्त ही ऐसा था, सब एक दूसरे को हौसला दे रहे थे। इरसा के लिए हर हौसला बेमायने था। कैसा गमो आलम का सिलसिला शुरू हुआ था जिसने सब कुछ ही तहस नहस कर दिया था। फिर रफ्ता रफ्ता सब अपने अपने घरों को चले गए और इरसा माँ के कमरे में तन्हा रह गई। माँ की यादें और अपनी बीमारी का धचका उसे हर वक्त निमनाक रखता। यूं ही वक्त गुजरता रहा और चहल्लुम भी हो गया। चहल्लुम पर फरहान नहीं आया था। दिलावर ने इस बात को बहुत महसूस किया कि वो सोयम के बाद से दोबारा आकर नहीं फटका और अब भी नहीं आया। जिंदगी में कभी उसने इस घर की खुशी गम में साथ नहीं छोड़ा था, लेकिन अब दामाद बनने के बाद वो अचानक किस तरह बदल गया। दिलावर ने जब इरसा से पूछा तो इरसा फट पड़ी। अब फरहान कभी नहीं आएगा भाईजान। क्यों? दिलावर का लहजा तंद ही नहीं हकीर भी था। ये शादी तुम्हारी पसंद से हुई थी इरसा, तुम ये क्या कह रही हो? हाँ मेरी पसंद से हुई थी, मगर मुझे क्या पता था कि मुझ पर ऐसी कयामत टूट पड़ेगी। आप लोगों ने जल्दबाजी में देखा ही नहीं, फरहान HIV पॉजिटिव है और मुझे इस अंधे कुएं में धकेल दिया। उसने रो रो कर दुहाई देते हुए कहा। ये तुम क्या कह रही हो इरसा? दिलावर को जैसे यकीन ही ना आया। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे भी इस मर्ज ने अपने शिकंजे में निकल लिया। वो गम से दोहरी हो रही थी। दिलावर को यकदम करंट लगा और वो कई लम्हे इरसा को ऐसे देखता रहा जैसे अचानक कोई खौफनाक सांप फन उठाए उसके सामने आ बैठा हो। गोया उसने जरा सी भी आंख झपकी तो वो सांप उसे निगल जाएगा। इरसा रो रही थी और दिलावर शददुद बैठा था। उस वक्त तो उसने कुछ ना कहा, तसल्ली के 2 बोल ना बोले, पर शाम को कहने लगा, ऐसा करो इरसा, तुम अपने घर चली जाओ। क्या? इरसा गंग ही तो रह गई। हाँ इरसा, तुम्हारा अपने घर जाना ही ठीक है। तुम फौरन अपना इलाज शुरू करवाओ। फरहान तुम्हारा ज्यादा ख्याल रख सकेगा। मैंने फरहान को फोन कर दिया है, वो आकर तुम्हें ले जाएगा। इरसा फटी फटी आंखों से भाई की तरफ देख रही थी जो उससे कई कदम दूर हटकर खड़ा था। इरसा बुरा ना मानना, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले ही हम तो गमों से निढाल हैं। ये बीमारी एक दूसरे को लगती है। देखो मेरी बात का बुरा ना मानना, और फिर यहाँ कौन तुम्हारी देखभाल कर सकेगा? ये तो सब किस्मत में लिखा होता है। हमने तुम्हारी बेहतर किस्मत के लिए ही तुम्हारा भला चाहा था। बज़ाहिर तो फरहान में कोई नुक्स नजर नहीं आया था, खुदा ने इस भेद को पोशीदा रखा। इसमें हमारा क्या कसूर है? अब तुम्हें अपनी बदबख्ती से समझौता कर लेना चाहिए। इरसा के आंसू अब हलक में गिर रहे थे। तुम अपना इलाज करवा लोगी तो बेहतर हो जाओगी। अभी यहाँ किसी को कुछ नहीं पता, रफ्ता रफ्ता पता चल जाएगा कि कोई तुम्हारे पास आकर भी नहीं भटकेगा। बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। दिलावर के चेहरे पर कितनी अजनबियत थी। इरसा की सारी खुशफहमी धरी की धरी रह गई थी। मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे कलाम पाक का, उसकी हुर्मत का मजाक उड़ाया था, झूठ बोला था, मैंने बहतान लगाया था अपने शौहर पर, गवाह बनाया था तेरी किताब को। बेशक उसमें तेरी किताब नहीं थी, मगर धोखा तो दिया था। उस किताब का नाम लेकर कसम उठाई थी। मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर दे, मैंने झूठी कसम उठाई थी, तेरी पाक किताब से खेल खेला था। आज यही खेल अजाब की सूरत में
میری زندگی پر مسلط ہو گیا۔ فرحان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی مگر رہنے پر مجبور ہوں۔ وہ مجھے مرض لگا کر بھی خود مورود الالزام ٹھہرا رہا ہے۔ میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے موت دے دے، میرے پردے ڈھانپ لے، میرے گناہوں کو خطاؤں کو معاف کر دے۔ میں سالار سے ملنا چاہتی تھی، اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ میں اس کے اسٹور پر بھی گئی تھی، مجھے پتا چلا کہ وہ جدہ میں سیٹل ہو گیا ہے۔ وہ اتنی دور چلا گیا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ مجھے پھر کبھی نہیں ملے گا۔ مجھے سالار معاف کر دے گا تو میرا اللہ بھی معاف کر دے گا۔ وہ اسی آس اور امید پر دن رات پاگلوں کی طرح سالار کا فون نمبر ملاتی تھی کہ شاید اس کا فون ہی اٹینڈ ہو جائے اور اپنے کیے گئے جرم کی یاد دیانتی کی اور بہتان کی معافی مانگ لے۔ اگر معاف کرنا خدا نے اس کے لیے لکھا ہوتا تو وہ سالار سے ضرور مل پاتی۔ سالار تو اس سے بہت دور چلا گیا تھا۔ اسے کیا پتا تھا اللہ جب کسی کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کا بخت کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ یہ صلہ سالار کے صبر کا تھا۔ سالار نائمہ کے ہمراہ جدہ میں سیٹل ہو گیا تھا۔ یہاں اس نے احرام کی شاپ کھولی تھی۔ وہ اپنی زندگی اور جیون ساتھی سے بہت مطمئن اور خوش تھا۔ نائمہ قرآن پاک کی نہ صرف حافظہ تھی بلکہ ترجمہ و تفسیر سے بھی سند یافتہ تھی۔ تبھی وہ فراغت کے وقت میں خواتین کو ترجمہ و تفسیر کی تعلیم دیتی تھی۔ وہ سورہ نور کا ترجمہ پڑھ رہی تھی۔ سالار گھر میں داخل ہوا تو اس کی تلاوت کی آواز سن کر اس کے قریب ہی جوتے اتار کر بیٹھ گیا۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ سورہ نور آیت 26۔ بے شک اللہ کی بزرگی اور بڑائی کا کوئی ثانی نہیں۔ سالار کا سر جھک گیا اور آنکھیں اس رحمان کی تعریف میں اشک بار ہونے لگیں۔ اس نے کہیں پڑھا تھا، جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ جل شانہ کی مرضی سے ہوگا جو ہماری مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہے۔